Hello, everybody. My name is Pulkit, and I welcome you all to the Sports Strategy by Pulkit Chaudhary. Before beginning, I will just state my qualifications that I have done my BPES and BPEd from MIT University, and currently I am pursuing my Masters in Physical Education from MIT only. So, in today's session, I will be talking about the introduction of sports management and functions of sports event management. So, before jumping to the functions, I have mentioned two terms, sports and sports management. Before that, I would like to ask, is there any difference between sports and games? So, they both are the physical and mental activities or any contest, but games are being played as a purpose of pleasure or to be played in a leisure time. आपने सुना होगा कि कॉलेज में या स्कूल में आपको ब्रेक मिलता है बीच में, लंच ब्रेक होता है, फिर एक गेम्स पीरियड होता है. तो उस जो लीजर टाइम मीन्स जो आपका खाली टाइम है उसके कैसे यूटिलाइज करना है. वी कैन प्ले सर्टेन गेम्स or where sports are considered as the activities played under the rules and regulation set by any organization people where people compete against each other. अगर मैं बहुत बेसिक डिफ्रेंशिएशन की बात करूं तो हिंदी में दोनों को ही खेल बोला जाता है और गेम को कंसीडर करते हैं एज अ टीम गेम्स वेयर टीम कम्पीट्स अगेंस्ट ईच अदर. लाइक फुटबॉल हो गया, फुटबॉल की कोई भी दो टीम्स हो गई आपस में कम्पीट कर रही हैं. सपोज़ रियल मैड्रिड हो गई, बार्सिलोना हो गई, तो ये दो टीम्स हैं जो आपस में कम्पीट कर रही हैं. सो वी कंसिडर दैट थिंग इज़ एज अ गेम. स्पोर्ट्स का क्या है, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर है, लाइक एनी बैडमिंटन प्लेयर, एनी टेनिस प्लेयर, वेयर अ पर्टिकुलर पर्सन इज competing against a single person, that is considered as a sport. Now, talking about the sports management, it involves any combination of skills related to planning, organizing, directing, controlling, budgeting, leading, and evaluating within the context of an organization whose primary product or service is related to sports or physical activity. The thing we have to consider it is related to sports and physical activity. Management is something to getting the things done to achieve a particular goal. If I talk about the management can be, we can define it is a process of getting the work done or task to get done that is required for achieving the goals of an organization. तो कोई भी इवेंट अगर हमें कंडक्ट कराना है उसके लिए हमें एक मैनेजमेंट खड़ा करना होता है जहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, हमें एग्जीक्यूट करने होते हैं किसी भी एक इवेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए. वो हो गए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, लीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग. आगे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स ओनली. हियर वी गो. फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होते हैं, लाइक फीफा वर्ल्ड कप हुआ, NBA हुए, ओलंपिक गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए, ये सब बहुत बड़े लेवल के इंटरनेशनल इवेंट्स हैं. क्या होता है कि ये जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को कंडक्ट कराना और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना इतना इजी नहीं होता है. इन सभी में हमें किन चीज़ों की नीड होती है, ये कुछ फंक्शन है किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं. पहला फंक्शन हुआ प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज़ स्टाफिंग, फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग, फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग. ये एक सीक्वेंस है POSDC. ये सीक्वेंस हमें चेंज नहीं करना है, इसी सीक्वेंस में हमें फॉलो करना होता है. नाउ वी विल बी कवरिंग ऑल दोज फंक्शंस इन डिटेल. Planning. According to Theo, planning is deciding in advance what is to be done. When manager plans, he projects a course of action for the future, attempting to achieve a consistent, coordinated structure of operations aimed at the desired result. कभी भी हम प्लान करते हैं तो we already have a goal to achieve. Planning can be stated as the process of putting thoughts together and organizing activities required to achieve the desired goal is known as planning. In a clear-cut manner, planning is defined as developing a strategy to achieve desired objectives, solve
प्रॉब्लम्स, फैसिलिटेट एक्शन। क्या होता है कि कोई भी एडवांस स्ट्रेटजी बनाना किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, या ये कोई भी लेआउट ऑलरेडी प्रिपेयर करना किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इज़ नॉन एज प्लानिंग। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं जहां पे कि हम अलग अलग तरह के इवेंट्स कराते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। उसमें हमारी जो टीम है क्या करती है, ऑलरेडी एक प्लान बनाती है, एक लेआउट तैयार करती है जिसे हम बोलते हैं एजेंडा। 1 से 2 दिन पहले हम वो चीज़ प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि क्लियरली मेंशन होता है कि किस टाइम से किस टाइम तक क्या चीज़ होनी है, इतने से इतने टाइम तक क्या चीज़ होनी है, ब्रेक कब होना है, ये पार्ट हमें कब बताना है। तो वो चीज़ इतने स्मूथली कंडक्ट करा पाते हैं हम क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक प्लान ऑफ एक्शन है। तो प्लानिंग इज़ नथिंग बट टू मेकिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, ताकि कोई भी जो इवेंट है वो स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाए। मीनिंग ऑफ प्लानिंग: प्लानिंग इज़ नथिंग बट टू डिसाइड what, when, where, how, by whom it to be done। कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, वो किसके द्वारा, कहाँ पर और कब और कैसे कराना है, यही तो प्लानिंग है। कि विद प्रॉपर प्लानिंग इट इज़ पॉसिबल टू अचीव वंस गोल स्मूथली इफिशिएंटली विदाउट पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन वन सेल्फ। क्या होता है कि हम कोई भी इवेंट कंडक्ट कराते हैं तो अलग अलग काम अलग अलग लोगों को डिवाइड कर देते हैं ताकि एक ही पर्सन पर पूरा प्रेशर ना जाए और चीज़ें स्मूथली कंडक्ट हो पाए। क्या होगा कि अलग अलग लोगों को जब हमने काम डिवाइड किया है तो वो उनकी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से ही किया है, तो वो लोग उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल टू अचीव शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर मैं एग्जांपल दूं तो काफ़ी टाइम होता है ऐसा कि हम स्कूल में जाते हैं जहाँ पे 400 मीटर्स का ट्रैक बनाने के लिए इतना फील्ड अवेलेबल नहीं होता है। तो जितने भी फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं तो क्या करते हैं कि 200 मीटर का एक ट्रैक बनाते हैं। उसी पर जितना भी इवेंट है, 400 मीटर का इवेंट उसी पर कंडक्ट होता है, जितनी भी रिलेज होती हैं वो चीज़ें वहाँ कंडक्ट होती हैं। और उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम जितने भी फील्ड इवेंट हैं उन सब की मेज़रमेंट भी हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं। तो वही है कि जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट करके और किसी भी गोल को एक बढ़िया वे में, इफ़िशिएंट वे में अचीव करना ही प्लानिंग। So now objectives of planning to maintain good control over all the activities। हमारे पास एक ऑलरेडी प्लान रहेगा तो किसी भी एक्टिविटी को कैसे कराना है हमारे पास कंट्रोल रहेगा उस चीज़ का। To increase efficiency we already have a plan and we have already divided the work to the people। जो जिस भी काम में एक्सपर्ट है अलग अलग लोगों को उसकी ड्यूटी दे दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी काम की, कम टाइम में अच्छे से काम हो जाएगा। तो टू रिड्यूस अननेसेसरी प्लेजर ऑफ इमिडेसी, इतनी जल्दबाजी नहीं रहेगी क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ प्लान टू एग्जीक्यूट। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर, ज़्यादा लोग रहेंगे, वी हैव अ प्लान, तो चांसेस ऑफ एरर भी कम ही होगा। increases the creativity and number of programs conducted at a place। like I just given you example कि किसी भी स्कूल में काफ़ी बार ऐसा होता है कि 400 मीटर ट्रैक बनाने के लिए फील्ड अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वी डिज़ाइन अ 200 मीटर ट्रैक वेयर वी conduct all those events accordingly। Now talking about the organizing is the next step after planning। It is a process of execution of plan। This includes distributing resources and organizing personnel in order to achieve the goals stabilized in the planning stage। Planning is nothing but to collect all the resources pre-match या pre-competition। Take an example of football tournament। Suppose it's a match day 1। All the teams have come। Now रेफरी भी आ चुके हैं, पर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है जो ये मैच ऑर्गेनाइज करा रही है वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि मैंडेटरी हैं फ़ुटबॉल टूर्नामेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। लाइक फुटबॉल्स उतनी नहीं है या कोई भी विसल वगैरह कुछ किट्स वगैरह में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो टूर्नामेंट अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए।
Organizing a stage determines these type of jobs and responsibilities to achieve planning objectives. Preparation of organizational chart with various positions and reporting should be illustrated. Talking about the staffing, it refers to the identifying key staff positions and ensuring that proper talent is serving that particular job, specific job or duty in order to achieve the aim and objective of एन ऑर्गेनाइजेशन. इट्स लाइक कि हम इसमें कमिटीज़ बनाते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज़ देते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग. इन दिस प्रोसेस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ टेक्स प्लेस. कि कौन किस प्लेस के लिए वेल क्वालिफाइड है, हम उस ही के अकॉर्डिंग उस पोजीशन पे उस आदमी को रखते हैं. आफ्टर हायरिंग, पर्सनल ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्टेज. यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस भी कराते हैं उन लोगों को कि हमारा जो गोल है उसका क्या नेचर है, क्या पॉलिसीज़ हैं, जो भी हैं, ताकि वो लोग ओरिएंटेड रहें कि व्हाट डू वी हैव टू अचीव. नाउ टॉकिंग अबाउट द कमिटीज़ इन स्पोर्ट्स. कोई भी इवेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हम वेरियस कमिटीज़ को फॉर्म करते हैं, नई नई कमिटीज़ बनाते हैं, जैसे कि पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, ये सब. अभी क्या होता है, जनरली बात करूँ तो एक कमेटी होती है मैनेजमेंट की, जो कि हर एक इंस्टीट्यूशन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को लेती है, और जनरल कमेटी टेक्स द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेसफुल ऑफ कंपटीशन. अभी क्या होता है, जनरल कमेटी इज़ हेडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर अंडर होम एग्जीक्यूटिव कमेटी परफॉर्म्स. लाइक अंडर जनरल कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी टेक्स द चार्ज, और उसके अंडर कौन आता है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ही जो मेन जो काम होता है वो होता है कोई भी स्पोर्ट्स या गेम्स इवेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट करना. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज़ द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल एंड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स. अभी क्या है, वेरियस कमिटीज़ आर फॉर्म्ड अंडर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. जितनी भी ये कमिटीज़ हैं ये सब ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ के अंदर आ गई हैं. जैसे पब्लिसिटी कमेटी हो गई, इसका क्या काम होता है, ये अनाउंस करती है डेट और वेन्यूज़. ठीक है, कि एडवांस में ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देना जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को कि डेट क्या रहेगी, वेन्यू क्या रहेगी. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, इसका क्या काम होता है कि जो भी टीम्स आ रही हैं खेलने उन लोगों को वेन्यू तक पहुंचाना. अभी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की बात करूं तो इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड मील्स टू द स्पोर्ट्स पर्सन और एनी अदर ऑफिशियल. रिसेप्शन कमेटी का क्या काम होता है, ये लोग वेलकम करते हैं जो भी टीम आती है या जो भी चीज़ें चेंजेस होनी होती हैं, तो रिसेप्शन कमेटी का काम होता है. ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, नाम से ही पता चल रहा है, ग्राउंड पे या जो भी इवेंट होना है उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए रहेंगे, या ग्राउंड की हालत कैसी है, ग्राउंड ऑलरेडी सेट है इवेंट को कंडक्ट कराने के लिए, तो ये सब काम है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का. रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी का क्या काम होता है, ये कमेटी सप्लाई करती है रिफ्रेशमेंट एंड ड्रिंक्स to the guest officials or the competitors. It also makes some arrangements for the entertainment programs like opening ceremony, closing ceremony, sporting event type. अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एड कमेटी की, फर्स्ट एड कमेटी इज़ हेडेड बाय अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी इवेंट हम कराते हैं तो फर्स्ट एड की नीड पड़ सकती है. लाइक वेन एवर देर इज़ अ स्पोर्ट देर इज़ अ prone to injury also. द कमेटी प्रोवाइड्स फर्स्ट एड टू द विक्टिम. जो भी अफेक्टेड एथलीट है उसे एकदम से फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना. दिस कमेटी मेक्स द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प प्रायर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट बिकॉज एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन मे गेट इंजर्ड ड्यूरिंग द. अब आ गई फाइनेंस कमेटी. ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं जो भी इवेंट होता है, और जो भी स्पॉन्सर्स हो सकते हैं उन लोगों को ढूंढते हैं ताकि कोई भी इवेंट में चीज़ों की कमी ना रहे. प्रेस एंड मीडिया कमेटी का क्या काम होता है, इन लोगों का काम होता है इवेंट को अच्छे से एडवर्टाइज़ करना. जो भी चीज़ें हैं इवेंट के बारे में अपडेट देते रहना, एडवर्टाइज़ करना ताकि लोगों में अवेयरनेस आए. सर्टिफिकेट कमेटी की बात करूँ तो
ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, चीज़ों लोगों को ट्रॉफीज़ अवार्ड्स वगैरह जो भी होते हैं इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सर्टिफिकेट कमिटी। ऐसे it is not like these are not the only committees. According to our need we can form various committee. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की बात करूँ तो डायरेक्टिंग पर्सनल इज़ अ लीडरशिप क्वालिटी and includes letting staff know what needs to be done by whom and also by when. It includes supervision of personnel when simultaneously motivating them without directing, planning, or organizing has no meaning. It's like finding a new leader. Um, any person who is having a leadership quality, वो एक लीडर को ढूंढना जो कि who keeps the whole work on check, लोगों को मोटिवेट करता रहे और ड्यूटीज़ जो डिवाइडेड हैं ऑलरेडी, स्टाफिंग ऑलरेडी की हुई है, पर वहाँ पे एक आदमी ऐसा हो जो लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो उन लोगों को लीड करे, चीज़ों को शॉर्ट आउट करे और एक 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 उन्हें पाथ दिखाए कि क्या कैसे क्या चीज़ करनी है। तो उन लोगों को लीड करना और सारे काम को अच्छे से चेक करते रहना इज़ अ वर्क ऑफ डायरेक्टर. It is a function of guiding, inspiring, instructing people to accomplish organizational goal. पूरा जो मेन फंडा है वो ये है कि हमें गोल अचीव करना है। और कैसे कि एक डायरेक्टर है, एक जो लीडर है वो लोगों को गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा कि कहीं भी कोई भी इशू आ रहा हो तो उन लोगों का चीज़ें सॉर्ट आउट करेगा और फाइनल डिसीजन में हेल्प करेगा. Now moving to the last one, which is controlling. Controlling refers to the process that leaders create to monitor success. It involves stabilizing performance standards, measuring actual performance and comparing them for irregularities. इसमें क्या होता है कि एक लीडर जो डायरेक्टर है वो फॉल्ट्स को निकालता है और इफ़ द थिंग्स आर गोइंग स्मूथली देन वो अप्रिशिएट करता है अपने पूरे स्टाफ को और ही कीप्स मॉनिटरिंग द थिंग्स. बाकी जो भी करेक्टिव मेजर्स की नीड होती है वो अप्लाई करता है और चीज़ों को करेक्ट करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि ये क्या करता है कि इम्पार्ट करता है इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज़ और ऑल्सो इंश्योर्स कि जितने भी इंस्ट्रक्शन आगे दिए जा रहे हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं. हायर ऑर्डर मैनेजमेंट जो होता है वो अपने से नीचे वाले को ऑर्डर देता है और वो लोग अपने से नीचे वालों को ऑर्डर पास करते हैं. तो कुछ नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन पास करते जाना है अपने से नीचे वालों को और चेक ऑन रखना है कि लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं. यही कंट्रोलिंग है. इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को. बाकी हमें बस यही ध्यान रखना है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है. POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन सभी को मिलाकर ही एक इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट बन सकता है. सो थैंक्स एवरीबडी फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड. Rest, we will continue this chapter in next session. Till then, take care of yours. Jai Hind.